So business is very important for each and every business enterprise. Business cannot survive, business cannot grow, business cannot stand, business cannot be started without adequate finance. Whether it is a very small shop like a footpath shop or Anil Ambani, Mukesh Ambani, Tata, Birla, they cannot survive a single day without adequate finance. So they need finance. I've told you in the previous period, they need finance, and the finance which the owner invested into the business is not always sufficient, especially in the manufacturing concern or a large enterprises or the enterprises like manufacturing or a big business enterprises, they cannot survive without adequate finance, and that finance is not sufficient which the owner has invested. So they have to look forward to the other sources of finance from which they can get finance. ठीक है, other sources से उनको पैसा लेना ही पड़ता है. अब what are those sources that we are going to explain? I have told you there are two type of capital. One is working capital, one is, wait a minute. So there are two types of requirement for a business. One is working capital requirement and second is fixed capital requirement. ठीक है, फिक्स कैपिटल जो लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत होती है, लाइक building, plant and machinery, vehicle that serve the business for a longer period, and working capital requirements which serve the business in day-to-day running of the business. ठीक है, so funds, one second. So we are discussing about the long-term business finance, which is fixed capital. देखिए फिक्स कैपिटल कहां से आ सकती है बिजनेस के पास, कोई बता सकता है? एक तो हमारा जो ओनर ने इन्वेस्ट किया, मैंने कहा उसको छोड़ दीजिए, दैट इज नॉट एडिक्वेट कैपिटल, दैट इज नॉट सफिशिएंट कैपिटल. Anybody can tell me what, from where a business can get a long-term capital finance? ठीक है, लंबे टाइम के लिए कैपिटल कहां से आ सकती है बिजनेस में, या लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए कहां से हो सकता है? कोई बताएगा? Sir, from bank. What? From bank? Bank provide loans for longer terms. Any other source of long-term finance? A company, a business can get long-term finance from different sources. What are those sources? Can anybody name it? Bank loan is the correct answer. What? From shareholders. Shareholders. Good. Any other source? Debentures. Long-term loans from banks and other financial institutions. There is GDR, ADR, and IDR. I will tell you what are those. Tarang has muted me. Why? Are you getting my voice? Purvi, are you getting my voice? Yes, sir. Good. Tarang, why you have muted me? Okay. So, classification of source of finance on the basis. Okay. Classification of sources of finance on the basis of ownership. देखिए, दो sources of finance and mainly they are
long term sources. ठीक है, on the basis of ownership we can divide the sources of finance in two main parts. One is owners fund and other is borrowed funds. Owners fund क्या होते हैं? What are these owners funds? ओनर्स फंड जो ओनर पैसा लगाता है. अभी मैंने बोला कि ओनर जो पैसा लगाता है वो तो सफिशिएंट नहीं है. जो कंपनीज होती हैं, मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनीज. ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के बारे में मैं बता रहा हूं कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में पैसा होता है, फंड्स होते हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट शेयर होल्डर्स. मुकेश अंबानी इज नॉट द होल सोल ओनर ऑफ द रिलायंस लिमिटेड. He is the major shareholder of the company and shareholders are the owners. तो ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी they are the owner, वो सिर्फ एक इकलौते ओनर हैं रिलायंस के, ऐसा नहीं है. They are the shareholders, लेकिन उनके पास ज्यादा शेयर्स हैं, इसलिए उनको वो एमडी हैं और उनकी चलती है रिलायंस में, बिकॉज दे हैव मेजर शेयर्स ऑफ द कंपनी. तो शेयर्स जिसके आज मैं चाहूं तो रिलायंस का ओनर बन सकता हूं. कैसे? मैं 1000 रुपए का एक शेयर खरीद लूंगा, 1000 रुपए में मैं ओनर बन जाऊंगा. आर यू गेटिंग दिस? तो 1000 रुपए, 100 रुपए में भी आप ओनर बन सकते हैं, लेकिन उतने ही पार्ट के लिए. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स मे बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड एंड लैक्स इन अ कंपनी. ठीक है, एक कंपनी में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है, जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, वो ओनर बन जाता है और उसको कंपनी के शेयर का, प्रॉफिट का शेयर मिलता है. गेटिंग दिस? तो ओनर्स फंड जो ओनर लगाते हैं. ठीक है, अब ओनर क्या क्या लगा सकते हैं? शेयर्स. शेयर्स के भी दो पार्ट होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स. इसके अलावा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग जो प्रॉफिट हुआ बिजनेस का, उसमें से कुछ पार्ट बचा लिया जाता है फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज एंड रेस्ट पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. सॉरी, रिटेन अर्निंग्स वो मैं बाद में, अभी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, नेक्स्ट पीरियड में मैं थॉरली एक्सप्लेन करूंगा. देन ADR, GDR, IDR. I will explain you. Then borrowed funds. Borrowed fund जो हम उधार लेते हैं, जो हम किसी से उधार लेते हैं, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो डिवेंचर्स हो, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, हम उनसे बोरो करते हैं. That is borrowed funds. So there are two types of funds. One is owners fund and other is borrowed funds. Now let us discuss the difference between owners fund and borrowed funds. Owners funds means funds that are provided by the owners at an enterprise, which may be a sole trader or partners or shareholders of a company. Apart from capital, it also includes profit invested, reinvested in the business. So owners fund वो फंड है जो ओनर्स बिजनेस में लगाते हैं. ठीक है, जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज ओनर्स फंड. एंड borrowed funds refer to the funds raised through loans and borrowings. One second. मम्मी थोड़ा वॉल्यूम दी. यस, ओनर्स फंड एंड borrowed funds. ओनर्स फंड वो हैं जो ओनर इन्वेस्ट करते हैं, मे बी दे आर कॉल्ड shareholders. And borrowed funds, whatever we borrow from the different sources, that is borrowed funds.
अब ओनर्स फंड क्या क्या हो सकते हैं? आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर। बोरोड फंड्स क्या हो सकते हैं? डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लोन्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ठीक है, ये सारे जो सोर्सेज हैं ये हम आगे पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। टाइम पीरियड, देखिए ओनर्स फंड जनरली इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ओनर्स फंड्स में, जो कि लाइफ टाइम के लिए होते हैं। जब तक बिजनेस रन करेगा, ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया, वो लाइफ टाइम तक बिजनेस में रहेगा, जब तक बिजनेस रन कर रहा है, और बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड तक रन करता है। तो ये पैसा बिजनेस में इनफाइनाइट पीरियड के लिए होता है। बोरोड फंड्स जनरली नॉर्मली कुछ फिक्स पीरियड के लिए लिए जाते हैं। बोरो हम करेंगे तो हमको वापस करना ही पड़ेगा एक फिक्स पीरियड के बाद, और उस, ठीक है, तो बोरोड फंड्स का टाइम पीरियड फिक्स होता है कि इतने फिक्स पीरियड के बाद हमको पैसे वापस करने। हम आपसे 100 रुपए उधार लें तो हम ये बता के लेंगे कि हम आपको कल दे देंगे, परसों दे देंगे, 1 महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद। इसी तरह बोरोड फंड्स है। नेक्स्ट इज रिटर्न, रिटर्न ऑन ओनर्स फंड। ओनर्स फंड पे हम प्रॉफिट का शेयर देते हैं। ओनर्स फंड जैसे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इस पे हम लोग प्रॉफिट, जो कंपनी का प्रॉफिट होगा वो ओनर का होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो। ठीक है, यहां जो प्रॉफिट होगा वो ओनर को दिया जाएगा एंड इट इज कॉल्ड डिविडेंड। शेयर ऑफ प्रॉफिट which is distributed among the shareholders, that is called owners, and that is called dividend. And borrowed funds में हम interest पे करते हैं। तो shareholders fund यानी owners fund में we are paying dividend, and borrowed funds में we are paying interest. Then security, it does not require any security. जो ओनर्स फंड है इसमें हमको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, कुछ मॉर्गेज नहीं करना पड़ता है। वी डोंट हैव टू मॉर्गेज एनीथिंग। मॉर्गेज मींस गिरवी। लेकिन जब हम लोन लेने जाते हैं बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, या डिबेंचर्स इशू करते हैं, देन वी हैव टू मॉर्गेज सम एसेट्स, क्योंकि अगर हम लोन नहीं पे कर पाए तो हमको अपने एसेट्स को नीलाम करके उनका पैसा वापस करना पड़ेगा, लोन का। ठीक है, तो वी हैव टू मॉर्गेज समथिंग। देन ओनर्स की जो फंड है उस पे कंट्रोल मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट यानी जो कंपनी है उसका, या ओनर का कंट्रोल होता है। वी कैन से ओनर का कंट्रोल होता है पूरा पूरा कि उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन बोरोड फंड्स में कंट्रोल जिसने दिया है उसका होता है। आपको बताना पड़ता है कि आप किस काम के लिए पैसा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, एंड वेयर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट मनी। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड द बोरोड फंड्स। तो दो सोर्सेज हैं मेनली अकॉर्डिंग टू द बुक। दो सोर्सेज आपके केस उसमें है, ओनर्स फंड सिलेबस में, owners funds and borrowed funds, and difference, and it is a very important, so you should go through this from your book, and if you have any doubt you can ask me. Owners fund and borrowed funds and the difference between the two. ठीक है, that is all for today. ठीक है, we will start the next topic in this chapter from tomorrow onwards. Thank you so much. Are you getting my voice? Are you all getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. So, have you understood what is owners fund and borrowed funds? Yes, sir. Purvi, Dipanshi? Yes, sir. Chalo, Yes, okay. sir.
if you should go through this chapter today itself and ask me if you have any problem. Thank you so much. All the best.